अच्छा, we have already finished with some problems related to continuity. ठीक है, हमने continuity का problems किया था. अब varieties of continuities problem will do. Already we have done two types of continuity. One is continuity in a domain and continuity in a point. ठीक है, आज दूसरा वाला continuity का problem हम लोग करेंगे. That is your continuity of function in the closed interval. That we are going to do. So I'll be taking one problem from my side first. उसके बाद बुक का क्वेश्चंस मैं रेफर करूंगा. That you will do yourself. ठीक है, ओके. अब मैं तुम लोगों को सुन नहीं पाऊंगा, स्पीकर क्यों ऑफ है मुझे पता नहीं है. राइट. सो एनीवे, इसी पेज में मैं कर रहा हूँ. यू, अच्छा मुझे ही दिखाई देगा, हैंडराइटिंग समझ में आएगा या नहीं. जस्ट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. डिस्कस the continuity of a function defined below. Right, there is a function we have defined below and we have to discuss the continuity of this function. Okay, I'm just trying to see क्या तुम लोग पढ़ पा रहे हो. चैट बॉक्स में भेजो, क्योंकि मुझे मेरा स्पीकर ऑफ है. कैसे हो गया मुझे पता नहीं है. ओके, so you can see that. Fine. So now I am going to give you the function and we'll discuss the continuity. So function है, suppose it is twice x when the value of x is belonging to 0 to 2 including 0. Suppose it is x when the value of x is belonging to 2 to 3, and then this is suppose half of x when the value starts from 3 onwards up to, here you include 2, it is less than or equal, and this is 4. Right, so this is the function and you have to discuss the continuity. That means you have to identify where the function is continuous, where it is not. Right, that is what you have to identify for this function. So now see one thing. The first thing you need to observe is that you have got a limit of the domain. Your domain starts at 0 and finishes at 4. So this is a closed interval. So your domain is a closed interval. So when your domain is a closed interval, then you try to apply continuity in the closed interval. So we had 3 steps for that. What first step is? You have to check the continuity in the open interval. So this is a process what we have to go for. Solution, right? We'll give the heading at 0 to 4 open interval. So first of all, once you get, you have to identify those points where the function is broken. So the point where the function is broken are 2 and 3. So from 0 to 4 in the open interval, if you need to discuss the continuity, your points which you need to check first are 2 and 3. इनको पहले देखना है. ठीक है, उस दिन बोला था यही दोनों हो सकता है जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो. तो you have to check these 2 points first, फिर intermediate places, तब जाके पूरा ओपन इंटरवल कंप्लीट होगा. सो फर्स्ट यू डिफाइन, देखो 0 से लेके 2 तक कौन सा फंक्शन है. फंक्शन का डेफिनेशन है ट्वाइस एक्स. 2 से 3 तक डेफिनेशन इज एक्स एंड 3 से 4 तक इट इज हाफ एक्स. राइट, कहानी क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, इसका सब पार्ट हो रहा है एट एक्स इक्वल टू ये वाले पॉइंट 2 में करेंगे. क्या 2 में हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चाहिए? हाँ जरूर चाहिए. बिकॉज इफ यू स्टैंड हियर, अगर यहाँ पे खड़ा होके लेफ्ट में देखोगे तो ट्वाइस एक्स मिलेगा, राइट में देखोगे तो एक्स मिलेगा. सो अलग अलग हो गया ना. सो यू हैव टू वर्क आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज एक्स टेंड्स टू व्हाट, 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड द फंक्शन, which particular part function का यूज होगा यहाँ पे, you can easily justify, that is your
twice x. This is twice x. Twice x part will be used. So value बैठाओ 2 into 2 that is equal to 4. Very nice. Now RHL. RHL बोले तो राइट हैंड लिमिट 2 में राइट हैंड लिमिट मतलब राइट साइड को देखो कौन सा फंक्शन का डेफिनेशन यूज होगा इसमें ये x हो गया सो वैल्यू विल बी 2. अब तुम्हें क्या पता चल रहा है व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड. अभी क्या पता चल रहा है तुम लोग लिख रहे हो इधर देखो इस कोने में लिख रहा हूं उर्दू का जैसा. ठीक है. देयरफॉर LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. That implies F is not continuous at x equal to 2. अच्छा इसके बाद एक स्टेप लिखना ये जरूरी है. That means this limit does not exist. This limit does not exist. So it is not continuous at x equal to 2. It is not continuous at x equal to 2. ठीक है. ओके फिर कौन सा पॉइंट उस इंटरवल में आने वाला और एक पॉइंट है 3. इसमें भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट fx. इसमें लेफ्ट साइड में कौन सा है fx का x डेफिनेशन तो x डालो तो you put x here the value is 3. What is RHL? You will be getting this as fx here. 3 में रह के राइट साइड में जाने से क्या मिलेगा भैया हाफ x. तो बैठा दो. ये थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है. तो यहां पे भी तुमको क्या मिला LHL एंड RHL नॉट इक्वल मिला. Therefore limit of fx as x tends to 3 does not exist. इसका मतलब f is not continuous at x equal to 3. ठीक है. f is not continuous at x equal to 3. बहुत बढ़िया. तो तुमने अभी तक अपना प्रॉब्लमेटिक एरिया को डिफाइन कर लिया. यही दोनों प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो सकता था. अब हम एक्सक्लूसिवली इन पॉइंट्स के बीच में जो जो फंक्शन है उनको देखेंगे. जैसे 0 और 2 के बीच में नाइदर 0 विल बी इंक्लूडेड नॉर 2 विल बी इंक्लूडेड. देखो ऑल्सो फॉर 0 लेस देन x लेस देन 2 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ fx? This is 2x. अच्छा मैं तीनों फंक्शन को एक साथ लिखना चाहता हूं क्योंकि तीनों पॉलिनोमियल फंक्शन है. नेचर एक है इसलिए एक साथ लिखा नहीं तो अलग अलग डिस्कस करना चाहिए था. सो दिस इज x एंड देन 3 लेस देन x लेस देन 4 fx इज इक्वल टू हाफ x. तो तुम एक एक करके देखो. इट्स ट्वाइस x एंड हाफ x आर पॉलिनोमियल फंक्शंस. तो मैंने पहला दिन एक लिस्ट बना के दिया था. क्या वो लिस्ट में याद है पॉलिनोमियल फंक्शन था या नहीं? तो याद करके देखो. इट वाज देयर. पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. तो इसका मतलब ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. ठीक है. समझ में आ गया. सो अभी हम नेक्स्ट कंक्लूजन क्या लिखेंगे लिख लो एंड गिव मी इंडिकेशन दैट यू हैव फिनिश्ड इट. कोई भी एक हाथ उठा के ही देना नहीं तो मुझे दिखाई नहीं देगा. हाँ ठीक है. सो इसके बाद हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे. वी विल राइट द कंक्लूजन. आई एम कीपिंग इट हियर ओनली इन फ्रंट ऑफ मी. कंक्लूजन क्या होगा? डज सॉरी व्हिच आर ऑल कंटिन्यूअस. व्हिच आर ऑल कंटिन्यूअस as they are all polynomial function. क्योंकि वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस हो गया. तो अब फिर से तुम एक बार देखो. आई एम ब्रिंगिंग दिस अगेन
तुम जब ओपन इंटरवल लिया था 0 से 4 में, तो 0 और 4 को लेना नहीं है, 2 और 3 को लिया और बाकी हिस्सों को लिया। इसका मतलब तुमने ओपन इंटरवल का पूरा काम कर दिया। तो ओपन इंटरवल में तुमको 2 पॉइंट मिला जहां डिसकंटिन्यूअस है। अब फिर 0 एंड 4 का भी बात है। तुम डेफिनेशन को याद करो क्लोज इंटरवल वाला। जब हमने ए से बी इंटरवल रखा था तो ए में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाले थे, याद करोगे, राइट। सो अभी हम लोग हेडिंग क्या करेंगे, एट 0 बोलेंगे, 0 सेकेंड स्टेज। पहले ओपन इंटरवल, ये दूसरा वाला पॉइंट है 0 में। तो 0 में हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना नहीं है, वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा ही नहीं, बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड टू द लेफ्ट ऑफ 0। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन का पार्ट आएगा जिसमें 0 इंक्लूड है? 0 किसमें इंक्लूड है? ट्वाइस एक्स में। तो वैल्यू कितना आया? 0 आया। अब जब 0 आ गया, लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ 0 भी निकालो। एफ ऑफ 0 किसमें इंक्लूड है? 2 0 में। देयरफॉर इसमें तुमने देखा कि राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये कंटिन्यूटी इन्फॉर्म करता है। अगर ये होता है तो दिस टेल्स दैट एट x इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूअस। सो यू राइट देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड वाला पॉइंट ले लो तुम। अच्छा, इसमें अगर ये डेड एंड है, इसके साइड में क्या तुमको राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा? नहीं भाई, ये मैंने मना किया था। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, विल स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस टाइम एट 4। तो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 4 में, तो एफ एक्स में कौन सा फंक्शन आया? तुम देखो, ये हाफ एक्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इज इट हाफ एक्स? यस, 4 को इंक्लूड करने वाला फंक्शन हाफ है, हाफ एक्स। तो इसमें हाफ इंटू 4 2 आया। व्हाट इज एफ ऑफ 4? हाफ इंटू 4 दैट इज 2। तो तुमने यहां पे क्या देखा? लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 4 व्हेन टेंड्स फ्रॉम लिमिट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, फंक्शनल वैल्यू हो गया। तो कंडीशन क्या है? f is continuous at 4। अच्छा, अब फिर तुम देखो, अभी तुमको ध्यान से देखना है, ये थोड़ा मैं लंबा करके खींच रहा हूं बिकॉज यू शुड नोटिस। तो तुमने अभी ये वाले फंक्शन को 0 से 4 के बीच में जो 2 और 3 है सब में किया। इस वाले पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, गैप में सारे कंटिन्यूअस है, और ये दोनों पॉइंट में भी कंटिन्यूअस है। तो अब तुम अपना ऑब्जर्वेशन को देखो एंड यू राइट ए कंक्लूजन ओवर इट। क्या होगा कंक्लूजन? देयरफॉर f is continuous in its domain। डोमेन कौन सा है? 0 से लेके 4, except at points x equal to 2 and x equal to 3। तो 0 से 4 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा except at the point x equal to 2 and x equal to 3। Please see and indicate me whether you have understood or not। आ गया समझ में? ओके, वेरी नाइस। सो नाउ अभी इसका और दूसरा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बाकी तीनों टाइप का मैंने प्रॉब्लम कर दिया। अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम करते हैं जो बुक में है, राइट। दैट प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डू। सो डायरेक्ट बुक का प्रॉब्लम मैं नहीं ले रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक
some questions from the reference book only. So ये तुम्हें जरूर हेल्प करेगा बुक का क्वेश्चन करने के लिए. So I am going to take some questions. So note down the questions. Exercise 1 तुम लोगों को खत्म कर देना है. ये क्वेश्चन नंबर 1 बुक में भी ये नहीं होने से भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. Find the value of a and b if एक फंक्शन लिया हमने, ये पीसवाइज फंक्शन है. पीसवाइज बोले तो इसको बहुत सारे पार्ट में काट काट के रखा गया है. It has been divided into small pieces, so it is piecewise function. ठीक है. This is continuous. Find the value of a and b if this function is continuous. ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो a और b का क्या वैल्यू, दैट यू हैव टू फाइंड. प्लीज नोट डाउन दिस. अब हम इसको करेंगे. आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन. सो आई एम रिमूविंग दिस शीट. सो कंटिन्यूटी यहां पे पहले डिस्कस कर लेता हूं मैं. आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस फर्स्ट, देन आई विल प्रोसीड. यहां पे बोला गया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है? इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. मतलब डोमेन का हर एक पॉइंट में ये कंटिन्यूअस होगा. इन पर्टिकुलर बिकॉज हमें दो वैल्यू चाहिए, दो इक्वेशन निकालना है, तो इन पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे जो स्प्लिट किया है डोमेन को 2 and 10, ये दोनों पॉइंट लेने से ही हमारा काम बन जाएगा. ठीक है. सो एट दिस दोस 2 points वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी. ठीक है. मैं इस बार स्केच कलर से लिखता हूं, सो आई थिंक इट विल बी मोर प्रोमिनेंट टू यू. ठीक है. तो पहले का आइडिया जैसा हम लोग डोमेन को ऐसे बांट लेते हैं. रियल नंबर होगा इस बार डोमेन. एक पॉइंट है जहां टूटा है, एक 2 है और दूसरा वाला 10 है. एक पॉइंट जहां टूटा है, एक 2 है, दूसरा वाला 10 है. और लेस देन और इक्वल टू 2 में जो फंक्शन डिफाइन किया है, व्हाट इज द फंक्शन? इट इज 5. इस वाले में 5 fx इक्वल टू, ये हिस्से में ax प्लस b और इसमें 21. अब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो a और b का क्या वैल्यू है, दैट इज द क्वेश्चन. यही क्वेश्चन है, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है. ठीक है. तो क्या करेंगे? वी विल राइट इट लाइक दिस. एक स्टेटमेंट लिख देते हैं. सिंस f is continuous, so it is continuous at x equal to 2 and x equal to 10 in particular. अगर पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये दोनों स्पेसिफिक पॉइंट में भी कंटिन्यूअस होगा. बढ़िया है. तो अभी इनको वर्कआउट करते हैं. अगर x2 में कंटिन्यूअस है फंक्शन तो हमें क्या मिलेगा? सो वी विल राइट इट लाइक दिस. सिंस f is continuous at x equal to 2, right? x equal to 2 में जब ये कंटिन्यूअस हुआ, so what we will write? Limit of the function at x equal to 2 must be equal to functional value at 2. ठीक है. अब देखो लिमिट तो एक स्टेप में निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां खड़ा रह के लेफ्ट में देखोगे 5 नजर आएगा, राइट में देखोगे दूसरा नजर आता है. तो यू हैव टू डेफिनेटली स्प्लिट दिस इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट. तो तुमने स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे f of 2
अभी वैल्यूज को बैठाओ, इसमें कौन सा फंक्शन का पार्ट आएगा भैया? लेफ्ट वाले में 5, राइट वाले में कौन सा? ए एक्स प्लस बी, और एफ ऑफ टू। टू किसमें इंक्लूड था? देखो फंक्शन को, देखो सबसे फर्स्ट पार्ट में ये 5 है, तो दोनों मिलके लेफ्ट साइड में 5 हुआ, इसमें एक्स के जगह में 2 आएगा, तो इट इज ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 5। तो ओवरऑल में तुमको क्या मिला? ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 5। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। एक कहानी हमने क्लियर कर दिया, हमने एक कहानी को ठिकाने लगा दिया। अब दूसरा कहानी देखना है। ये कहानी समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस कहानी इज अंडरस्टूड, राइट? ओके, सो अभी चलते हैं दूसरा कहानी में। ऑल्सो एफ being continuous at x equal to 10, what you can say, x equal to 10 में जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो फंक्शनल वैल्यू का बराबर होगा। इसका मतलब क्या है भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होने का। व्हाट इज द फंक्शन यू हैव यूज्ड हियर? जब 10 का लेफ्ट में जाओगे कौन सा दिखता है? ए एक्स प्लस बी। 10 का राइट में जाओगे कौन सा दिखता है? 21। 10 में जाओगे तो भी 21 ही दिखता है। इसका मतलब हो गया ये 10 ए प्लस बी, और राइट साइड में एक बार ही लिख देता हूं 21, क्योंकि दोनों वैल्यू 21 होगा। ये नंबर 2। अब तुम्हारे पास रिसोर्स नंबर 1 एंड नंबर 2 है, दोनों को खलास कर दो और वैल्यूज को निकाल दो। कैसे खलास करेगा? सॉल्व करो। 1 माइनस 2, 1 से 2 को माइनस किया, सो 2a माइनस 10a विल गिव यू माइनस 8a। 5 माइनस 21 will give you minus 16. So what is the value of a? भाई साहब 2 मिला। इसके बाद 1 में बैठा दो, 1 से b का वैल्यू क्या होगा? 5 माइनस ट्वाइस ए। 5 माइनस ट्वाइस ए बोले तो 2 इंटू 2, मतलब हो गया b इक्वल टू 1। तो ये हो गया तुम्हारा कहानी का समाप्ति। सो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 होने से फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एक बार देख लो इसको, फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेने वाला हूं, प्लीज देखो। जस्ट 15 सेकेंड्स टाइम, 15 सेकेंड्स टाइम। हो गया,
ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो जाओ. दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द बुक ओनली. आई डू नॉट नो द सीरियल नंबर बिकॉज बुक इज नॉट विथ मी. मैं एक रेफरेंस बुक से इसको ढूंढ के निकाला, तो सीरियल नंबर नहीं दूंगा. क्वेश्चन को लिखो बस. यू विल कम टू नो फ्रॉम बुक ओनली व्हिच क्वेश्चन इट इज. सो मैं तो लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, बट इट इज फ्रॉम द बुक. तो क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda. Find the value of lambda for which fx equal to lambda times x square minus twice x, where x is less than or equal to 0, and 4x plus 1 where x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. ये एक्चुअली सीबीएसई एग्जाम में भी आया हुआ है, 2011 में आया था. तो ये क्वेश्चन है बुक में. एक बार बुक से देखोगे एंड देन आइडिया लेके उसको क्वेश्चन नंबर को बस बनाना. मैं करके तो मैं ही दे रहा हूं. तो कहानी सेम है. क्या करना है पूरे कहानी को स्टार्ट करने के लिए? वही भाई सेम ओल्ड आइडिया. पूरे डोमेन को देखो. डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है. टूट कहां रहा है फंक्शन? 0 में. बहुत बढ़िया है. अब 0 में खड़ा होकर लेफ्ट में देखो क्या नजर आता है. 0 में खड़ा होकर लेफ्ट में ये नजर आता है, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स. राइट में क्या नजर आता है? 4x प्लस 1. और 0 जहां है वो वहां क्या नजर आता है? ये नजर आता है. बस हो गया. बस अभी हम लोग अपना मिशन स्टार्ट करते हैं. कंटिन्यूअस 0 में होने के लिए क्या होना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट 0 मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. तो हम लिखेंगे टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू लड्डू, we must have what should we have? Left hand limit at 0 of fx, right hand limit of, sorry उल्टा बोल रहा हूं मैं. left hand limit at 0 of fx, right hand limit at 0 for fx and equal to f of 0. बस अब कहानी को लिखते जाओ. जब तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट का बात किया, इसका मतलब 0 में खड़ा होकर लेफ्ट में देखना है, और लेफ्ट में देख के x का जो fx का जो भी कहानी है उसको यहां पे लिखना है. लिख दिया. राइट साइड में क्या कहानी बनता है? इट इज 4x प्लस 1. और लड्डू में क्या कहानी बनेगा? देखो लड्डू कहाँ है? लड्डू इधर है, लड्डू इधर है. 0 बनेगा. बन गया C. अब एक एक करके वैल्यू को एवेलुएट करने का. ठीक है, एक एक करके मतलब दूसरा नहीं करोगे, एक ही साथ में एक ही स्टेप में, लेकिन इंडिविजुअल. सो यहाँ पे वैल्यू 0 बैठाओगे तो 0 आएगा. बस यहाँ 0 बैठाओगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 1 आएगा राइट साइड में, और एक 0 आया. यहां जब पहुंच जाओगे तुम्हारा खोपड़ी में एक दिक्कतें आना चाहिए. भाई ऐसे कैसे हुआ? हमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो एक अजीब टाइप का सेंटेंस आ गया. कौन सा सेंटेंस? 1 और 0 इक्वल बन गया. क्या ये सही है? नहीं है. तो यू विल राइट व्हिच इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे और एक बात आया है. यहाँ पे और एक बात आया है कि लेम्डा है ही नहीं.
तो इसका मतलब लेमडा का वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करते रहो, तुम्हारे हाथ में कभी भी इसको छोड़ के दूसरा आएगा ही नहीं, मतलब हमेशा तुमको अजीब अजीब रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा का कोई भी वैल्यू लेने से ही ये कंटिन्यूअस होने वाला नहीं है। सो यू राइट देयरफॉर फॉर नो वैल्यूज ऑफ लेमडा f is continuous at x equal to लड्डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क करके दे रहा हूं और मैं करके भी दिया। सो प्लीज अगेन गो फॉर 15-20 सेकेंड्स थ्रू दिस, क्योंकि अभी मैं दूसरा वाला में फिर जा रहा हूं जो बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। आई डोंट नो द सीरियल नंबर्स बट बुक का है। जब हो जाएगा एक बार हाथ उठा के बोल लेना। ओके, धन्यवाद। तो अभी चलते हैं दूसरा एक क्वेश्चन में जो बुक का ही है, राइट। सो इट विल बी हैविंग अ डिफरेंट नेचर। लेट अस स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कहानी तमाम करते हैं। तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू of k so that the function function क्या है, fx equal to k cos x divided by pi minus twice x where x is not equal to pi by 2 and यहां पे 5 जब x इक्वल टू पाई बाई 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 में कंटिन्यूअस अगर होना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन का जैसा ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने इसको अलग बताया। लेकिन बट दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। सो हम लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन लिख लिया, आई होप यू हैव नोटेड डाउन और एल्स यू कुड फाइंड इट इन द बुक ओनली, व्हिच क्वेश्चन नंबर उसको लिखने से भी होगा। अब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको करने का जुगाड़ बना दिए हैं, तो जुगाड़ को देखो कैसे करेंगे। पहले फंक्शन को लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ढक दिया। सो फंक्शन को पहले लिख लेते हैं। हियर fx इक्वल टू k टाइम्स cos x divided by pi minus 2x where x is not equal to pi by 2 and this is 5 where x is equal to pi by 2। बस अब हम इसको पहले एक स्ट्रक्चर में बना देते हैं, वही कहानी हम ड्रॉ करते हैं। फिर डोमेन और कौन सा साइड में क्या मिलेगा वो देख लेते हैं पहले अपना सुविधा के लिए। ये रहा हमारा डोमेन, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, कहीं पाई बाय 2 खड़ा है। जहां पाई बाय 2 है वैल्यू बताया गया 5। लेफ्ट में जाओगे k टाइम्स x डिवाइडेड बाई पाई माइनस ट्वाइस x, राइट में जाओगे फिर भी वही है। मतलब बहुत क्लियर है कि इस बार लेफ्ट साइड में जो मिलेगा राइट साइड में भी वो मिलेगा। और इसमें तुम एक बार ध्यान दे दो, क्योंकि पहले एक बार गूगली हो गया था, मॉडुलस फंक्शन में लेफ्ट साइड में जाने से अलग है, दिखता मगर सेम है, राइट।
लेकिन वो साइन में डिपेंड करता था। लेकिन cos x इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइन हियर, राइट? cos x के जगह cos माइनस x पुट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी आर इक्वल। सो इसमें हमें वो एडवांटेज है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना नहीं है। तो यू राइट, फॉर बीइंग continuous at x इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू में कंटिन्यूअस होने के लिए हमें क्या चाहिए? लिमिट एट पाई बाई टू ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एट पाई बाई टू। बढ़िया है, कहानी क्लियर है। तो इसमें एफ एक्स में क्या आ जाएगा? जब लिमिट होता है इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा। लिमिट जहां हम निकालते हैं बी श्योर के ये वैल्यू इक्वल नहीं है, क्लोज टू दैट। पाई बाई टू में क्या वैल्यू बताया तुमने? 5। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? what we are going to do, we will try to evaluate a limit. आप तुम्हारा स्किल डिपेंड करेगा। if you are good at evaluating the limit then your task is done. अब पता नहीं गुड है या बैड है, लेकिन मैं करके देता हूं। ठीक है, आई हैव टू ऑप्शंस, आई कैन गो फॉर एल हॉस्पिटल रूल, जो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैंने सिखाया ही नहीं, बाद में करेंगे इसको, राइट? अब दूसरा वाला कर लेते हैं पहले, दैट इज नॉर्मल यूजुअल वे। तो यूजुअल वे में क्या करेंगे मालूम है? इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई माइनस वाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करके टी बनाएंगे, एक्स को निकालेंगे। व्हाट विल बी एक्स इक्वल्स? इट इज पाई बाई टू माइनस टी बाई टू। करके देखना, मैंने डायरेक्टली किया। जब एक्स टेंस टू पाई बाई टू होता है, टी टेंस टू क्या होता है? लड्डू होता है। बस कहानी इतना ही है। अब इसी कहानी को तुम बढ़िया से आराम से ट्रांसक्रिप्ट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में। x टेंस टू पाई बाई टू टेल्स यू t टेंस टू 0, और बाकी वैल्यूज को भी लिखो। ये तो 5 है, ये k है, cos। अब भैया x के जगह में क्या आएगा? पाई बाई टू माइनस टी बाई टू, और ये पूरा जगह में तुमने t लिखा था। बस थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाना, बिकॉज ये क्लास 11 का चीज है। याद है या नहीं मुझे पता नहीं है, नहीं है तो बहुत खुशी की बात है। नीचे वाला t को t बाई टू बना लिए, किसके साथ मैच करने के लिए? भैया साइन के जोड़ीदार के साथ। तो एक 2 तो बनता है यहाँ पे, बन गया सी। इसमें ये दोनों कचरा है, कचरा को बाहर करें, k बाई टू। जब तुमने कचरा को बाहर कर ही दिया तो तुम्हें बहुत ही क्लियरली एक फॉर्मूला नजर आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स बाई एक्स एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। उसका वैल्यू था 1, दिस इज इक्वल टू 5। কত হইলেন? This is equal to 10. So value of k is 10. बुक में शायद ये 5 का जगह में 6 था, राइट? एक बार देख लो इसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट टू टेल यू व्हेन और व्हिच पर्टिकुलर year it came, right? Even and please go through it, and then if you have any questions, if queries, you can clarify it. क्या मैं आगे बढ़ूं? बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं।
बोर तो नहीं लग रहा है? बोरिंग लग रहा है क्या? लगने से अच्छा है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम इसको करेंगे। पहले ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा एक चांस लेके कर लेते हैं, राइट। अच्छा, कंटिन्यूटी का आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे डेरिवेटिव शुरू करेंगे, बट एक या दो क्वेश्चन कंटिन्यूटी का रह जाएगा, उसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे क्वेश्चन नंबर 4 देखने से डर जाओगे क्वेश्चन, इसीलिए मैं देने का इच्छा कर रहा हूं, बिकॉज ये बोर्ड में आया हुआ है, 2013 में आया है, ऑल इंडिया में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if fx, व्हाट इज fx? अच्छा, इसको देखने से ही तुम्हारा कहानी उलझ जाएगा। रूट ओवर 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये -1 और 0 के बीच में फंसा है x, और नीचे वाले है ट्वाइस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और इस बार x फंसा है 0 और 1 के बीच में, राइट। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू लड्डू। तो लड्डू में अगर कंटिन्यूअस होगा तो k का वो कौन सा वैल्यू है? You have to find this, right? लिख लो, क्योंकि मैं इसको ढकने वाला हूं, मैं ढक दूं, ढक देता हूं, ठीक है, ओके। अभी हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर वही स्टाइल में, ठीक है, वही स्टाइल में ऐसे बना लेते हैं हम लोग डोमेन। लेकिन ध्यान देना, मैं लिखा तो हूं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, डोमेन मगर ये नहीं है, इस बार डोमेन है ओपन इंटरवल -1 to 1। ओपन बोले तो गोला जो है, दैट गोला शुड नॉट बी फिल्ड। हाँ, बीच में लड्डू जरूर आ रहा है, लड्डू इज इंक्लूडेड, या लड्डू इंक्लूडेड नहीं है? लड्डू इंक्लूडेड है, मैंने एक गलती किया था, फंक्शन को दिखा देता हूं, यू प्लीज ट्राई टू करेक्ट इट। यहाँ लड्डू इंक्लूड है, सेकेंड वाले पार्ट में लड्डू इंक्लूड है, ये लड्डू इंक्लूडेड है, प्लीज मेक श्योर, ओके। तो पहला वाले पार्ट में जब -1 से 0 के बीच में खड़ा हो जाओगे तो तुम किससे मुलाकात करोगे? The function you are going to deal is 1 plus kx under the root minus 1 minus kx under the root divided by x। बहुत खतरनाक तरीके का फंक्शन है। और राइट हैंड साइड में जब आओगे 0 का, मतलब 0 और 1 के बीच में किससे मुलाकात होगा भैया? ट्वाइस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। थोड़ा सा सहूलियत है बस। अब जब 0 में कंटिन्यूटी डिस्कस करोगे तो कहानी को याद करो भाई, 0 कैसा पॉइंट है? एलओसी वाला पॉइंट है। लेफ्ट में जाओगे दूसरा डेस, राइट में जाओगे फिर दूसरा डेस। तो इसका मतलब तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लिखो, टू बी कंटिन्यूअस at x equal to laddu, we should have what? Left hand limit at laddu of fx, right hand limit of fx at right hand limit of fx at laddu, and then this is equal to f of laddu। अब फंक्शन का पार्ट बैठाओ, you please put the values in the sense the function। तो
ये होगा 1 माइनस के एक्स, सॉरी 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ट्वाइस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और एफ ऑफ जीरो में क्या आएगा, जीरो किस में इंक्लूडेड था, सेकेंड वाले पार्ट में, तो इसमें बैठेगा जीरो, तो 2 डिवाइडेड बाय -1 होने का। अच्छा, अब कहानी को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया। देखो भैया, हम इसको लंबा खींचते हैं, क्योंकि याद करो जब जब हमें इरेशनल क्वांटिटीज का लिमिट इवैल्यूएट करना था, तब तब हम लोगों ने रेशनलाइजेशन नामक चीज का हेल्प लिया था। तो इसमें भी रेशनलाइजेशन करोगे, चाहे वो डिनोमिनेटर का हो या फिर न्यूमरेटर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द रेशनलाइजेशन ऑफ द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का ये जो क्वांटिटी है, ये कचरा पहले से ही मौजूद है, ये नीचे मौजूद है पहले से ही। अब कौन सा कचरा डाल के इसको रेशनलाइज करोगे, कचरा जो डालोगे डेट इज 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स अंडर द रूट, और नीचे भी यही कचरा तुमको मल्टीप्लाई करने का, राइट। तो तुमने कहानी को यहां पे खत्म कर दिया। और इस साइड में देखोगे तो देखो इसका वैल्यू भी -2/1 होगा, तो ओवरऑल में -2 आएगा, तो लिख के दोनों के लिए एक ही लिख दो, नो नीड टू राइट इट 2 टाइम्स। एक गलत लिखा मैंने ना, ये सॉरी 2/1 नहीं होगा, यहाँ 0 बैठने से ये 1 होगा, सॉरी आई एम सॉरी, इट इज -1 नॉट 2/1। सो अभी इसको इवेलुएट करो, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे रखो, इसको अभी बना दो, लेफ्ट साइड राइट साइड में तो 1 ही है, ये हो गया ऐसा, ये कचरा ऐसे ही रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर का कचरा a² माइनस b² वाला फॉर्म में आ गया, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स। भाई खेल खत्म हो गया सी। अब देखो कौन कटेगा, कौन कटेगा भैया, 1 कटेगा, 1 कटेगा लो, तो क्या आएगा, लिमिट यहां पे x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हो रहा है, ऊपर में आ जाएगा 2kx, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया, राइट, सो दैट यू कैन रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट फ्रॉम क्लास 11। एक्चुअली यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट वही है, बहुत लोगों को सब आता है लेकिन लिमिट निकालना नहीं आता है, जहां वो मार खा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कटेगा, एक्स एक्स कटेगा लो, एक्स एक्स कटेगा लो, तो जब ये कट गया, जो बचेगा उसका लिमिट निकालने के लिए तुम्हें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक्स का जगह में 0 बैठाने से अभी तुमको अनडिफाइंड नामक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज पुट करियो, ये 2 के नीचे हो गया सी, ये 1 2 -1 2 2 कटेगा लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, -1। So value of k is -1, for which this function is going to be continuous at x equal to 2. Please check this out. चेक करियो। और एक लास्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं, one last problem I'll be doing, giving you 10 to 15 seconds. Please check your problems. बुक का बाकी क्वेश्चंस सब कर लेना, ट्राई कर लेना, जहां नहीं मिलेगा कंटिन्यूटी का, जो नहीं कर पाओगे डू इन्फॉर्म मी, विल गो फॉर दैट।
क्या कहानी आगे बढ़ाया जाए? ओके, सो अभी देखो, एक बुक का ही क्वेश्चन है, सडनली दिमाग में आ गया तो उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो छूट जाने से गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि संजय सर ने सब नोट दे दिए हैं तुम लोगों को, नियम के अनुसार तो तुम लोगों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, सब नोट तो है ही एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के साथ। क्या बोलते हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा था मैं भूल गया, ठीक है, चलो 5 डाल देते हैं, 5 होगा शायद। ये बुक का क्वेश्चन है, शायद 19 या 20 नंबर क्वेश्चन, आई फॉरगॉट दैट। एग्जामिन द कंटिन्यूटी, right, examine the continuity of fx equal to x into sine of 1 by x when x is not equal to laddu, and here laddu when x is equal to laddu. E continuity check करने दिया है, not exactly at one point. You have to check the continuity in general. You have to check the continuity in general as a whole. क्या क्वेश्चन लिख लिया? नहीं लिखने से भी होगा, आइडेंटिफाई कर सकोगे तो बुक से, तो आराम से तुम लोग बच जाओगे। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बस हो गया, मैं इसको ढकने वाला हूं, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर वही तुम अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे? ये रह गया हमारा डोमेन, फंक्शन को तोड़ने वाला पॉइंट हो गया 0, जहां 0 में फंक्शन टूटा है उसके लिए उन लोगों ने एक स्पेसिफिक वैल्यू लगा दिया, 0 पे क्या होना चाहिए? 0, और दोनों साइड में क्या होना चाहिए? साइन ऑफ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, क्या साइन का वैल्यू 0 के आसपास लेफ्ट और राइट साइड में अलग अलग होता है? नॉर्मली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हालत ऐसा नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट हैव टू कैरी इन दिस केस द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली। तो डायरेक्टली हम बताएंगे, हमें टेस्ट करना है कंटिन्यूटी का। तो पहले प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू लड्डू, एट एक्स इक्वल टू लड्डू, लड्डू में हम लोग इसको करेंगे, विल डू इट इन द लड्डू, ठीक है। तो लड्डू में कैसे करेंगे? देखो भाई, लिमिट निकालेंगे इसका, एफ एक्स का, ओके, विल बी गेटिंग दिस एज एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। बस कहानी में यहां पे ही ट्विस्ट है, इसलिए प्रॉब्लम को चूज किया। कहानी में क्या ट्विस्ट है देखो, अगर तुम 0 को बैठा दोगे तो ये तो 0 बनेगा, दिस एक्स विल बिकम 0, फाइन, बट ये तो इंफिनिटी बनेगा, साइन इंफिनिटी डिफाइंड होता है थोड़ी, नहीं होगा ना, ये गड़बड़ा जाएगा भैया, 0 इंटू इंफिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, बट ये तो होता नहीं है, यहाँ पे होगा नहीं है, ये देख लो कैसे नहीं होगा, देख लो, क्योंकि तुम बैठाओगे 0, बट लिमिटिंग केसेस में 0 तो नहीं है, एक्चुअली इट इज नॉट 0, इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू 0। तो क्या साइन के अंदर नॉन जीरो वैल्यू बैठाने से कभी तुमको अनडिफाइंड वे मिलेगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होना ही पड़ेगा भैया। तो कहानी कैसे लिखेंगे देख लो, ये 0 को बैठाने का जगह ये एक्स है, हमने बैठा दिया, और दूसरे वाले के बारे में सोच लो, साइन के अंदर दुनिया में कुछ भी वैल्यू डालोगे, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर के लिए साइन निकालोगे तो हमेशा तुमको -1 और 1 के बीच में इंक्लूडेड बोथ एक वैल्यू मिलेगा, मतलब वो फाइनाइट है। तो हम लोग क्या डायलॉग लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट है ये, इनटू ब्रैकेट, ठीक है, 0 इंटू ए फाइनाइट वैल्यू, राइट, बिटवीन 1
-1 and 1 both इंक्लूसिव, मतलब -1 और 1 को लेके इनके बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगा भाई, जीरो तो या इंफिनिटी नहीं आएगा, तो ओवरऑल में क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके बाद एफ ऑफ जीरो निकालो, फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू तो दिया ही है, तो तुमने क्या वेरीफाई कर लिया, the function is having the same limit at x equal to 0 as the functional value is. So f is continuous at x equal to लड्डू। अच्छा, तुम्हें कंटिन्यूटी डिस्कस करने दिया है, सिर्फ लड्डू में चेक करने के लिए नहीं दिया। तो अभी भी तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ये कंक्लूजन में दे देते हैं कि क्या कंक्लूजन में देते हैं भाई, जीरो में कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, जीरो में कंटिन्यूअस हुआ तो ये कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन हम इस स्टेज में ये कमेंट नहीं कर सकते कि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि जीरो को छोड़ के बहुत सारा दुनिया में और पॉइंट है जिसमें तुमने अभी तक कोई कमेंट किया ही नहीं। तो अभी बाकी पॉइंट्स में कमेंट करने का टाइम आ गया, देख लो। ऑल्सो फॉर x not equal to 0, what is the definition of function you used? It is sine, so x into sine 1 by x। अभी हम कहानी को तुमको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन कंटिन्यूटी का पार्ट पहला दिन पढ़ाया, उस दिन हमने एक बड़ा सा लिस्ट बनाया था। उस लिस्ट में हमने बोला था कि कुछ कुछ फंक्शन जिंदगी में हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन। उनमें से एक फंक्शन था पॉलिनोमियल, दूसरा फंक्शन था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन इट्स डोमेन। बहुत बढ़िया। क्या जीरो अगर नहीं होगा एक्स, साइन ऑफ 1 बाई एक्स कंटिन्यूअस होगा? हाँ भाई होगा। एक्स कंटिन्यूअस होगा? हाँ होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन। तो दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट निकालते हो जो दोनों कंटिन्यूअस है, क्या वो दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा? हाँ भाई होगा। बस अब इस डायलॉग को लिखो। क्या मैंने जल्दी बोल दिया इसको? बोला है तो बोला है भाई, उपाय नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन का कमेंट, मेरा डाटा भी खत्म होने वाला है, 90% खत्म हो गया, इस प्रॉब्लम के बाद हैंग हो जाएगा, इसीलिए खत्म कर देता हूं। तो which is the product of two continuous functions, namely x and sine of 1 by x. Therefore, it is continuous in its डोमेन x नॉट इक्वल टू 0। ये वाले का बोल रहा हूं, नॉट इक्वल टू 0 का। तो ओवरऑल इंप्रेशन क्या मिला तुमको? एक ऐसा पॉइंट है जिसमें नहीं होना था लेकिन उसमें हो गया, तो बाकी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जब रियल नंबर का हर एक पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हम एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग लिखते हैं, f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर का। बस अभी हम सलाम ठोकेंगे। इफ यू आर फिनिश्ड यू विल शो योर थम्स अप, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे भी भाग जाना है। And we will see you in the next day with differentiation techniques. क्या हो गया है या नहीं हुआ है? हो गया। So anyway, so good night and bye bye for today. We'll see you again next day
दैट इज ऑन थर्सडे, ठीक है? ओके, टिल देन बाय। बाकी प्रॉब्लम्स कर लेना तुम लोग, प्लीज ट्राई टू डू दैट। बाय।